Good morning, guys. 11th of May. It's a Tuesday. Since the expiry is tomorrow, that is Wednesday, so today's option premium behavior will be exactly like a Wednesday. So, looking at the markets are opening almost 1% lower, and Bank Nifty almost 1.5% नीचे खुल रहे. So that is we are opening sub 14,800. यहाँ पे कहीं पे open हो रहे. So this ये जो दिख रहा है, this will definitely be an important level to watch out. अगर फर्स्ट मिनट में this level gets taken out, अगर ये लेवल अगर टेकन आउट हो जाता है, then the immediate next support will be somewhere around 14,720. अगर ग्लोबल मार्केट्स देखना है तो ऑलमोस्ट ऑल एशियन मार्केट्स और pretty much down by more than 2%, right? Nikkei more than 2.5%, Hang Seng 2.3%, Taiwan 2.5%. Okay, छोड़ दो ताइवान छोड़ दो, वो फर्क नहीं पड़ने वाला. And another concerning thing is if you look at the open interest, so this is the red is put, right? So the puts, काफी ज्यादा puts यहाँ पे लिखा हुआ है up till 15,200. हम 15,000 टच भी नहीं किए थे तब भी ऑलमोस्ट 15,000 100 200 पे काफी ज्यादा इन द मनी पुट्स क्रिएट हुआ है. Whenever such scenario happens, first of all मैं लास्ट 2 दिन से बोल रहा हूँ, आई थिंक लास्ट फ्राइडे से बोल रहा हूँ कि दिस वीक द ऑप्शन प्रीमियम्स आर वेरी चीप, मतलब काफी चीप में है ऑप्शन प्रीमियम्स. जब भी ऑप्शन प्रीमियम चीप रहता है एंड इफ देर इज अ बिग मूव, देखो why are the option premiums cheap? The option premiums are cheap because the market is expecting some sort of a slow and steady movement. ऐसे पैनिक सिनेरियो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है. that is why very little amount of risk has been priced into the options. तो जब ऐसे एक बड़ा मोमेंट आ जाता है, व्हाट विल हैपन इज द पीपल हु हैव शॉर्टेड दोस ऑप्शंस, मतलब जो भी ऑप्शन सेल करके बैठे रहते हैं एट सच डर्ट चीप प्राइसेस, दे विल बी फोर्स्ड टू अनवाइंड. एंड वो लोग इतना अर्जेंसी के साथ वो अनवाइंड करना शुरू कर देता है, तो दैट विल स्पाइक अप दोस प्राइसेस लाइक एनीथिंग. एंड विक्स का भी मतलब मैं बोलता हूं, जब भी विक्स 20 के आसपास आता है, for some or the other reason, maybe price action होने दो, maybe some news flow होने दो, or just because of option buying this thing, so this VIX will be pushed back up till 23 or 24, and currently now we are at 20.2 VIX, so highly probable that the VIX will shoot up throughout the day, and we will be very careful in entering the positions. पहले हम देखते हैं, because अभी देखो जल्दी पोजीशन एंटर करने के लिए द प्रीमियम्स आर नॉट दैट अट्रैक्टिव, तो हम जंप करने के लिए कोई देयर इज नो इंसेंटिव फॉर अस, तो वेट करते हैं. लेट्स से इफ द प्रीमियम्स स्टार्ट स्पाइकिंग अप बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन विक्स, तो आईडीज बढ़ जाता है, तो देन वी कैन गो एंड एंटर. तो आज मैं थोड़ा पोजीशन लेने में आई विल बी अ बिट केयरफुल, just because the FII started buying. FIIs might think this as a good opportunity to pump some money into the cash market. अगर cash market में पैसे आ जाता है, then the markets might stabilize in this range. ये range पे market stabilize हो सकता है. But अगर ये range breach कर देता है, this 14,790 level, 780 levels अगर breach कर देता है, then the immediate support is 14,720 and we have to be very careful about these levels. But anyway, जब भी अगर रेंज छोटा भी रहता है, even then it's going to be a bit difficult today because the option premiums are so low. So any positions I'll be taking, I'll keep you posted. All right, हमने पोजीशन लिया है. What we have done is we have taken a 14,650 and 950 strangle, and थोड़ा क्वांटिटी मैंने 40% ऑफ द क्वांटिटीज मैंने 14,700 पुट पे भी मतलब मैंने बैठा हूं. दैट इज बिकॉज द मार्केट इज लुकिंग लाइक इट्स गोना रिकवर, and these calls they might spike up big time. So that's why to manage the call spike, थोड़ा quantities मैंने 14,700 put पे भी मतलब डाला है. We are currently down by half a point. 3,000 quantity है आज, and we are currently cost to cost चल रहा है. And Bank Nifty पे I have not taken any positions because the premiums are super low. I'm not at all comfortable trading with such low premiums because मुझे range ही नहीं मिलता है. Even like 100 point spike in either directions can completely throw me off guard. तो इसलिए मैंने बैंक निफ्टी पे आज पोजीशन नहीं लेने वाला हूं. So this account will just be kept as it is. And निफ्टी में अभी सीन क्या है, once 14,850 is completely breached, तो of course 14,900 level is a good amount of resistance, तो 14,900 क्रॉस होना काफी मुश्किल है, but at the same time we'll be actively risk managing. एंड अगर 14,800 लेवल्स को अगर फिर से क्रॉस करने को आ जाता है, then we might have to move all these puts back to 14,650. So currently we are down by around half a point, and this straddle itself is this 300 point strangle itself is worth around 50 rupees. So it should not decay, anything less than 32, 33 rupees. So
अभी सीन क्या है, लाइक इवन इफ आई गेट लाइक 4 or 5 points ऑफ डीके ऑल्सो, आई बी प्रेटी मच लुकिंग टू एग्जिट दिस पोजिशन, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं थोड़ा कंफर्टेबल नहीं था पोजिशन लेने के। yeah, looks like it's gonna head higher, so what we're gonna do is we're going to wait a bit। ये 200 मूविंग एवरेज का जो लाइन है विच इज एट 14842, अगर वो लाइन ब्रीच कर देता है देन वी आर गोइंग टू कंप्लीटली शिफ्ट ऑल आवर 14650 puts to 14700। yeah, what I was saying is I was not at all comfortable trading today because first thing is we have such low premiums, इतना low premiums है, I'm not sure like how they are going to decay further, and the second thing is yes we gap down by 1% and there might be some sort of a volatility, so इस volatility को handle करने के लिए the premiums are not supportive enough, because of which I'm not trading, but and at the same time at any point of time we reach 10k mark to market loss, I mean if we are down by around 3 points 10k loss को मैं आज exit करने वाला हूँ, because first of all I have taken this position with a bit of reluctance, मतलब इतना confidence के साथ मैं position नहीं लिया हूँ, and the only reason is the premiums are super low and the VIX is close to 20, so we can expect the VIX to shoot up anytime, so that's the only reason। एंड जब तक मैंने पोजीशन एंटर किया है, सी आई एंटर्ड द पोजीशन ऑलमोस्ट आफ्टर 15 मिनट्स, ये 15 मिनट्स में काफी ज्यादा प्रीमियम डीके हो गया, सो देयर वाज अ गुड अमाउंट ऑफ प्रीमियम डीके एंड because of which like we are already entering at super low premiums। all right, the time is close to 9:45 and we are up by around 3 points, so 9k का आसपास MTM चल रहा है now। अभी देखिए यहां पे मैंने फिबोनाची लगाया है, राइट, सो दिस अप मूव इज टू बी सस्टेन्ड, अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट रिकवर करेगा फ्रॉम द लोज, तो इट हैज टू टेक, आई एम सॉरी, ओके, अगर मार्केट हमको लगेगा कि ये अपमूव सस्टेन करना चाहिए, सो इट हैज टू टेक सपोर्ट एट द 50% लेवल, मैक्सिमम इसके ऊपर ही रहना चाहिए, इसके नीचे आना नहीं चाहिए, सो इफ इट कम्स हियर देन द स्ट्रेंथ ऑफ दिस अप ट्रेंड, ये जो अप ट्रेंड चल रहा है ना, ये अप ट्रेंड का स्ट्रेंथ थोड़ा डिमिनिश हो गया है। सी मेरा जो प्राइस एक्शन देखने का तरीका है दैट इज अ बिट डिफरेंट, तो मैं यूजुअली प्राइस एक्शन देके मैं प्रॉफिट नहीं बनाता हूं, प्राइस एक्शन देके मैं रिस्क मैनेज करता हूं। अभी कैसे, फॉर एग्जांपल लेट मी एक्सप्लेन दिस, तो मैं यहां पे फिबोनाची लगाया, राइट, तो यूजुअली नॉर्मली प्राइस एक्शन देखने वाले क्या करते हैं, सो फिबोनाची यूज करके दे विल टेक एन एंट्री टू मेक प्रॉफिट्स हियर, बट जस्ट बिकॉज आई हैव अ नॉन डायरेक्शनल पोजीशन, तो मैं क्या करता हूं, इस प्राइस एक्शन को, इस फिबोनाची जो भी कॉन्सेप्ट्स है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स यूज करके आई विल ट्राई टू मैनेज माई रिस्क। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मार्केट ऐसे जाके यहां पे सपोर्ट लेके ऊपर जाना शुरू कर देता है, देन आई विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस टू शिफ्ट ऑल दी 650 पुट्स टू ऑलमोस्ट 700 पुट्स, राइट। अभी ये जो कॉन्फिडेंस जो आती है, so that is purely because of reading the price action। अगर आप सोचते हैं ना नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग में, हाँ मतलब एक रेंज बना के छोड़ दो कि पैसे बनता जाएगा, नो, बिकॉज इट बिकम्स वेरी ट्रिकी व्हेन द मार्केट्स आर डेफिनेटली गोइंग अगेंस्ट यू। बट वही चीज अगर इसके नीचे अगर क्लोज दे देता है, सो इफ 14800 के नीचे अगर क्लोज दे देता है, देन आई हैव टू रिस्क मैनेज फ्रॉम द पुट साइड। पुट साइड का जो है, इस पोजीशन को पुट साइड को मैं रिस्क मैनेज करना पड़ता है, एंड आई हैव टू शिफ्ट दिस पुट्स बैक टू 14650। एंड एक और प्राइस एक्शन पॉइंट कहां पे हो सकता है, सो द डे स्लो, राइट, डे स्लो शुड डेफिनेटली एक्ट एज सम सॉर्ट ऑफ अ सपोर्ट, वहां पे एक इंपल्सिव बाइंग एंड शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। सो अगर यहां पे आके इधर मूव करना शुरू कर देता है, देन आई कैन विथ गुड अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस आई कैन होल्ड दिस पोजिशन। बट एट द सेम टाइम अगर इस डे स्लो को ब्रीच कर देता है, स्पेशली आफ्टर अ गुड अमाउंट ऑफ गैप डाउन, तो ऑलमोस्ट 1% से ज्यादा गैप डाउन हुआ है, एंड उसके बाद अगर ये डे स्लो को अगर ब्रीच कर देता है, देन इट्स क्लियर दैट द मार्केट सेंटिमेंट कंटिन्यू टू बी बेरिश। तो तब मैं क्या करूंगा, तब इंस्टेड ऑफ एडजस्टिंग द पोजीशन आई विल कंप्लीटली पुल आउट ऑफ माय पोजीशन, बिकॉज जब डे स्लो ब्रीच होता है आई एम नॉट श्योर वेयर इट विल फाइंड द नेक्स्ट सपोर्ट। So using price action and using different concepts, I'll try to manage my risk rather than making profits। A bit of call side expansion now, because ये जो call है, it's still, I believe that this is still at a very cheap price। तो अगर ये expand हो जाता है, this can expand to let's say 35, 36 in no time। So यहीं पे भी मतलब वहां पे भी मतलब मुझे अच्छा सा एक 34 रुपीज पे मैं स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। All right, so I might have to
अरे गलती कर दिया. Okay, fine. Alright, now all my puts are at 14,700, which are pretty much equidistant from the spot now. I made a mistake actually. So instead of squaring up 14,650 put, I squared up 14,700 put itself. So I had to फिर से 2 बार position लेना पड़ा. But yeah, it's fine. So let's see. So at any given point of time, these should not expand to more than another 30%. यहाँ से expand होना नहीं चाहिए these puts if the market has to head high slow and steadily. Alright, अभी फिलहाल का पोजीशन जो है 14,700 put and 14,950 call, a 250 points triangle which is worth around 55 points, and this 55 points should be at least 48 to 47 points, but by the end of the day. So I'm expecting another 5 points of decay. So even if I get another 3 to 4 points of decay, I think I'm gonna cut the position. So mark to market wise, another 10k of profits. So I'll be looking at cutting the position. Alright guys, the time is 9:52. Just because these puts crashed immensely, so we completely pulled out of our positions and सारे orders close कर दिए हैं, and yeah, 16k for the day. The funds blocked were somewhere around 16 lakhs, so we made 1% within 25 minutes of entry. So 927 पे हमने एंटर किए थे एंड 952 पे हमारा सारा पोजीशंस क्लोज हो गया था. कल भी मतलब मेरा ट्रेड 9:15 को खत्म हो गया था. फ्राइडे भी मेरा ट्रेड शायद 12 o'clock के आसपास मैंने खत्म कर दिया था, एंड आज भी बिफोर 10 o'clock आई एम कंप्लीटली कमिंग आउट ऑफ माई ट्रेड्स. दैट इज फॉर अ रीजन, राइट? एंड बैंक निफ्टी अकाउंट में मैंने आज ट्रेड लिया ही नहीं जस्ट बिकॉज द प्रीमियम्स वर सुपर लो. ठीक है, कुछ ना कुछ डीके मिल जाता था, बट द रिस्क रिवॉर्ड इज नॉट इन आवर फेवर गाइस. तो मिल जाता है, डीके मिल जाता है. देयर इज नो डाउट दैट वी डोंट गेट डीके. ऑफ कोर्स टू थिंग्स दैट आर कांस्टेंट इन लाइफ, दैट इज वन इज डेथ एंड अनदर इज टीटा डीके. डेथ और टीटा डीके होगा ही होगा, बट द डेल्टा मूव्स, I don't think these premiums will support any delta move adjustment. So having said that, I think this is going to be the end of my trading day. So yeah, I'll see you guys tomorrow.